آپ نے آئین پر اتنا بڑا حملہ کر دیا. اس پارلیمان کی تو کوئی حیثیت نہیں. پارلیمنٹ تو بیٹھے نا منتخب. یہ تحریک ایک عام وکیل کی تحریک ہے. بچانے نکلے ہیں ہمارے ساتھ چلو، دستور بچانے نکلے ہیں. ایک ریاست دو دستور، ایک ریاست دو دستور، ایک ریاست دو دستور. ٹھکانوں میں پڑے گا، زندہ ہے بکلا، زندہ ہے زندہ ہے، جب جاگ اٹھیں گے زندہ ہے تو مان جائیں گے. یہ کالا کوٹ زندہ ہے، میرے دیش کے بکلا زندہ ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ حیدری. اس وقت میں ڈی چوک میں موجود ہوں. میرے ساتھ ایمان مزاری صاحب بھی موجود ہیں. آئیے جانتے ہیں کہ 26ویں ترمیم کو لے کے ان کی کیا رائے ہے. دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم ایک حملہ ہے آئین پر، عدلیہ پر، اور ہم اسے قبول نہیں کرتے. یہ ہمارا آج کا موقف نہیں ہے، بہت پہلے کا موقف ہے. اور اس طرح کے جو اٹیکس ہوتے ہیں عدلیہ پر اور آپ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی جو موقف حکومت کی طرف سے آیا تھا وہ یہ تھا کہ جی ہم 26ویں آئینی ترمیم لا رہے ہیں کیسز پینڈنسی کو ایڈریس کرنے کے لیے. آپ اور میں ادھر کھڑے ہوئے ہیں، کوئی مجھے دکھا دے کہ کیسز کی پینڈنسی کم ہوئی ہے. اس طرح غلط بیانی عوام کے ساتھ کرنا، عوام گمراہ نہیں ہوتی. آپ دیکھ رہے ہیں ادھر کتنے وکیل آئے ہوئے ہیں اور ہم اپنی یونٹی اور اسٹرینتھ دکھانے آئے ہیں آج کہ ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. جی میم، جیسا کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے اندر وکلا کی بھی گروپ بندی ہے. کیا یہ حقیقت ہے یا صرف ایک ایسے بیانیہ بنایا جا رہا ہے جھوٹا؟ کیا آپ کا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس میں وکلا کی بھی گروپ بندی ہے، کیا یہ حقیقت ہے؟ دیکھیں یہ جو ادھر وکیل موجود ہیں یہ واضح طور پر ایک پیغام دے رہے ہیں. بہت لوگ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز سے بھی وابستگی رکھتے ہوں گے، لیکن آئین کے ایشو پر کیونکہ یہ میرا آپ کا ایشو نہیں ہے، یہ پوری عوام کا ایشو ہے، یہ اس ملک کا ایشو ہے. تو اگر اس پر سب متحد نہیں ہو سکتے تو ہم شناخت کریں گے ان بار رہنماؤں کی جنہوں نے مخالفت کی اس موومنٹ کی، جنہوں نے سپورٹ کی حکومت کی، جو سرکاری بار بن کے آپریٹ کیے گئے، ہم یاد کر رکھیں گے انہیں. جی تو میم، جیسا کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم ہے، کیا یہ پارلیمنٹ کو حق ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں اگر آپ نے کوئی ترامیم لانی بھی تھی اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، کنسنسس بلڈ کرتے ہیں، آپ لوگوں سے یہ ڈسکس کرتے ہیں. آپ نے آئین پر اتنا بڑا حملہ کر دیا اور اس طرح دکھا رہے ہیں جیسے ترمیم ہوئی ہے. صرف ترمیم کی بات تو نہیں ہے. آپ اب دیکھیں کس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینیورٹی ججز کی افیکٹ ہو رہی ہے. جو انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ ججز ہیں انہیں کس طرح ان کا راستہ روکا جا رہا ہے، انہیں ایک طرح سے ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ہمارے لیے اسپیشلی ایز لائرز آف اسلام آباد جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں یہ ہم بالکل اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے. کراچی سے آئے ہمارے تمام وکلا، رحمان قرائے صاحب کا، عامر بڑائے صاحب کا، صلاح الدین کا اور ہماری لیڈرشپ کا، کہ وہ اتنی دور دراز سے اس غیر آئینی ترمیم کے پروٹیسٹ پہ یہاں آئے ہیں. اور ہم سپریم کورٹ کے ججز سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ لاہور بار نے بھی 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر رکھا ہے، جس طرح کراچی بار نے کیا ہے، جس طرح باقی بارز نے کیا ہے. تو آپ پہلے اس کا فیصلہ کریں، نہ کہ آپ کورٹ پیکنگ کرنے جا رہے ہیں اور اس سے یہ سارا معاملہ، یہ سارا ایشو بگڑ جائے گا. وکلا آج ایک پرامن احتجاج میں آئے ہیں. میں یہاں پہ مذمت کروں گا ہمارے بھائی قرائی صاحب پہ جو پولیس نے آج تشدد کیا ہے، وکلا کو روکا جا رہا ہے. ابھی ہماری قیادت سپریم کورٹ کے اندر ہے، وہاں پہ بھی ایک کنونشن ہو رہی ہے تو ہم باہر پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ابھی ہمارے ہائی کورٹ بار کے صدر اور باقی لوگ بھی پہنچ رہے ہیں. کچھ ہی لمحوں میں انشاءاللہ وہ رکاوٹیں ہٹاتے ہوئے یہاں پہنچ جائیں گے. میں اس غیر آئینی ترمیم کے پیچھے بیٹھی اسٹیبلشمنٹ کو اور ان تمام لوگوں کو یہ متنبہ کرتا ہوں کہ آئین پہ یہ جو شب خونہ آپ نے مارا ہے اس کو وکلا کسی طور بھی قبول نہیں کریں گے. یہ تحریک ایک عام وکیل کی تحریک ہے اور ہم اس تحریک کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے جب تک یہ چیزیں ریورس نہیں ہو جاتی. تو میں تمام وکلا سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اتحاد رکھیں اور ہم انشاءاللہ اپنے لیڈرشپ کی قیادت میں، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی قیادت میں
आगे बढ़ते चले जाएंगे और इंशाल्लाह ये तरमीम रिवर्स होगी और ये जिन लोगों को आज अदालतों में बिठा रहे हैं एक दिन ये फारिग होंगे यहाँ से। बहुत शुक्रिया। आज का ये दिन इंतहाई अहमियत का दिन है। आज हज़ारों की तादाद में वकला मुल्क भर से यहाँ पे निकल कर आज बदकिस्मती से कि मौजूदा जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, मैं समझता हूँ कि आप वकला की कुर्बानियों की बदौलत हैं। जब वकला का तहरीक था तो आप इस तहरीक के हिस्सा थे। आज सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस यहाँ पे मौजूद हैं वो वकला की कुर्बानियों की बदौलत मौजूद हैं। आप वकला ने, आवाम ने, सिविल सोसाइटी ने इसलिए कुर्बानी नहीं दी कि आप ऐशियाँ करें, आप लाखों की तनख्वाह लें। अगर आज आप आज़ाद होते, अगर आप अदलिया आज़ाद होती तो आज हमारे वकीलों को सड़कों पर घसीटा नहीं जाता। उस वकला तहरीक में मुनीर मलिक, अली अहमद कुर जैसे लोग जो कि जेलों में रहे, अडेला जेल में वक्त गुजरे, उन्हें कोई ऐसा जेल नहीं था जहाँ पे हमारे रहनुमा को जेल में नहीं रखा गया। आज हम हर जगह पे हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा था, हम सुबह से एक मुतालबा था कि हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जा रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट में जाना, क्या यहाँ पे जो जहाँ पे इंसाफ मिलता है वहाँ पे कौन सा कोई कदगन लगाया गया? जब सुप्रीम कोर्ट में कदगन होगी, सुप्रीम कोर्ट में जाने पे कदगन होगी, तो मैं समझता हूँ कि आज हमारी अदालतें आज़ाद नहीं हैं। 26वीं आईनी तरमीम जो कि एक सियासी तौर पर किया गया था, वहाँ पे रात के तारीकी में किया गया था। 26वीं आईनी तरमीम उस वक्त मुस्तरद हो चुका था जब वहाँ के वकीलों को, वहाँ के मेंबरान पार्लियामेंट को आपने अगवा करना शुरू कर दी। बलूचिस्तान के अंदर मेंबरान पार्लियामेंट को अगवा किया। जिस दिन 26वीं आईनी तरमीम पास होने जा रहा था पूरा बलूचिस्तान का शाहरा बंद थी, वहाँ की मेंबरान पार्लियामेंट अगवा थे। ये 26वीं आईनी तरमीम, ये मुतनाज़ा आईनी तरमीम जिनको बलूचिस्तान बार कौंसिल ने चैलेंज कर रखा है, वहाँ पे सिंध बार कौंसिल ने बलूचिस्तान के तमाम बार बॉडीज़ को चैलेंज कर सका है। हम समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम आइन से मुतनासिब आईनी तंजीम जिसमें इंसानी हकूक़ की पामाली है, यह ऐसा कौन सा ऐसा जो तरामीम आप देख सकते हैं आज पूरे दुनिया में बलूचिस्तान में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। रेकोडेक जहाँ पे अरबों का प्रोजेक्ट है, सीपेक का प्रोजेक्ट है, मिसिंग पर्सनस का मसला है। अगर इस किस्म के जज होंगे, जो सरकारी जज होंगे, जो इस्टेब्लिशमेंट के जज होंगे, वो बलूचिस्तान के लोग, तो फिर इन अदालतों में कोई भी इन अदालतों में नहीं जाएगा। आप पाकिस्तान की इमेज दुनिया में ख़राब करने जा रहे हैं। आज दुनिया भर में पाकिस्तान का जो इमेज है, अदालती का जो इमेज है, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। बलूचिस्तान के अंदर गुज़श्ता दिनों एक खातून को, एक बच्ची को अगवा किया गया, कबायली माशरे में अगवा किया गया। बलूचिस्तान में जो लोग दर्दनाते फिर रहे हैं, किसी ने भी ये अपील नहीं की कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से या चीफ जस्टिस बलूचिस्तान से आप उसका सुमो उठ लें। हम जानते हैं कि हमारे जो अदालतें हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। हमारा जो आइंदा जो लाएमल होगा, हम मुतालबा करते हैं कि आज जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन का जो इजलास हो रहा है, आज सुप्रीम जुडिशल कमीशन के इजलास को मुखर किया जाए। आप जो जजेस ले रहे हैं ये गैर आइनी जज होंगे। जिस तरह का 26वीं आइनी तरमीम गैर आइनी था, जिस तरीके से हमने इसको चैलेंज किया था, आज का जो एलिवेशन होगा हम इसको भी चैलेंज करेंगे। हम उससे बैठने नहीं देंगे। जो सरकारी इस्टेब्लिशमेंट के एमा पे जज बनेंगे वो जज आवाम का जज नहीं होगा। अदलिया के ऊपर कंट्रोल हासिल करने के लिए इस मकसद के तहत लाई गई थी और जिस तरीके से लाई गई, मेनेज को, पार्लियामान को महफूज किया गया, लोगों को उनके घरों से उठाया गया, यरगमाल बनाया गया, वो ये आईनी तरमीम थोड़ी है। ये तो इस तरीके से तो काले कानून पास तरीका एक्ट जिस तरीके से पास किया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्टेल किया, सहाफ़ियों का गला दबाने की जो कोशिश की जा रही है, आज वकला आपको नजर आ रहे हैं, फिर सहाफ़ी भी सड़कों पर। तो तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी इस नाअहल और नालायक और गैर आईनी कौम 47 के जरिए थोपी गई हुकूमत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है और ना ही उसके देखिए, हुकूमत अपनी कोशिश तो करेगी हमारी सफ़ों में दरारें डालने की। हमें कोई ऐसी उसके ऊपर तशवीश नहीं है, इसलिए कि ये एक पढ़ा लिखा तबका है। वकला कम्युनिटी आइन को भी समझती है, कानून को भी समझती है और उन्हें ये बात समझने में कोई मुश्किल नहीं है कि इस आइनी तरमीम का मकसद अदलिया की आज़ादी को कर्टेल करना। आज हम 250 के काफिले के साथ बमासदर अपने मेंबरान, वाइस चेयरमैन सिंध बार काउंसिल के साथ जो इस्लामाबाद आए, तो हम एक ही मकसद से आए कि ये सुप्रीम कोर्ट हमारी है। हम भरोसा करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे कि आप इस रोड पे खड़े हुए वकीलों की आवाज़ और जिस तरीके से बर्बरियत की गई, जुल्म किया गया, पीसफुल प्रोटेस्ट था हमारा, जो हम मार्च की शक्ल में कन्वेंशन में जा रहे थे, रोका गया। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि आप कोर्ट पैकिंग ना करें, आप अपने साथी जजेस पे भरोसा करें। क्यों? क्योंकि आपने 26वीं तरमीम बनाकर
जजेस को एग्जेक्टिव कंट्रोल में दे दिया है। हमने ये ख्वाब 2007 में नहीं देखा था। ये ख्वाब देख के हमने वकालत के पेशे को इख्तियार नहीं किया था। हमारी इस वक्त भी अपनी पीसफुल मुतबाना गुजारिश ये है कि आप इस पिलर को संभालें। रियासत इन 3 सुतूनों पे खड़ी है, जिसमें अवाम 22 करोड़ है, वो आपकी तरफ देखती है, आप पे यकीन करती है। हमने 6 मुद्दे लिए, उसके अंदर कि 26वीं तरमीम ने हमें तबाह कर दिया है। अब वो जजेस होंगे जब सिंध के मसाइल आएंगे, 6 केनाल के, जब सिंध के मसाइल आएंगे, कॉर्पोरेट फार्मिंग के, जब वो के इस्टेब्लिशमेंट को दी जा रही है, जब तुलबा के मसाइल आएंगे और ब्यूरोक्रेसी यूनिवर्सिटीज़ में अब बैठी हुई होगी, जब आपके पास पीका अमेंडमेंट्स आएंगी, साफ़ी हजरात की आवाज़ें बंद कर दी जाएंगी जो कि यहाँ पे आज़ादी अदलिया और आज़ादी राय का इख्तियार रखते हैं आइन के अंदर, तो उनके चार्ज शीट भी यहाँ से एग्जेक्टिव बनाएगा, आईओ भी वही होगा, वही प्रोसिक्यूटर होगा और जज भी वही होगा, तो कहाँ इंसाफ होगा। साफ़ी हजरात ने हमें ज्वाइन किया, ये कॉल आपने भी, हमने आपको भी दी, तुलबा की तंजीमों को ख़त्म करने के लिए किया, तो ये एक मॉडरेट मार्शल लॉ की तरफ हमें 26वीं तरमीम ले गई है। पहले आइन सस्पेंड होता था, कहते थे कि ये रद्दी की टोकरी में, अब अपने उन्हें छोटे छोटे कल वहाँ पे एजेंट्स बिठाए हुए हैं जो उनके इशारे पे अवाम का सौदा कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, हम कैसे फिर चुप रह सकते हैं, हम कैसे इस अदलिया पे यकीन कर सकते हैं। फर्दर हमें अपॉइंटमेंट्स होती हैं, एलिवेशंस होती हैं। आज मेरी जेसीपी की गुजारिश ये है कि आप उसमें कोई अपॉइंटमेंट ना करें। अब हम आगे लार्जर नंबर्स में लॉन्ग मार्च की शक्ल में हेयरिंग पे, फुल हेयरिंग पे आएंगे, जिसमें कराची बार एसोसिएशन खुद पिटिशनर है। हम उस हेयरिंग को बराह रास्त अपने दोस्तों के साथ, कराची बार के और ज़्यादा मेंबरान के साथ खुद आके कोर्ट में पेश होंगे। क्यों खड़े होंगे काले कोर्ट के लिए? आज का हमारा कोई बदला नहीं है, सिर्फ आइन बढ़ा है। क्यों? क्योंकि 22 करोड़ अवाम की उमंगें आइन से जुड़ी हुई हैं। हम सिर्फ उसी पे बात करेंगे। बाकी मेरी क़यादत ऑल पाकिस्तान एक्शन कमेटी, सिंध बार काउंसिल, बलूचिस्तान बार काउंसिल, लाहौर बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, ये सब मुत्तफिक हैं, इलेक्टेड लोग हैं। इनकी बात एक ही है कि हम आइन के कस्टोडियन हैं। हम 2007 में भी ऐसे निकले थे, हम आज 2025 में भी सरापा एहतजाज अमलन इस्लामाबाद में डी चौक पे खड़े हैं, सिर्फ किस लिए कि ये आइन अपनी असल शक्ल में वापस आ जाए। अभी सदर कराची बार आमिर वड़ाई साहब आपसे ख्यालात का इजहार करें। आमिर वड़ाई साहब मेरे सदर कराची बार एसोसिएशन। थोड़ा सा लाउड बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो 26वीं आइनी अमेंडमेंट है, आइन बड़ी पाक चीज़ होती है जो हर इंसान के राइट्स को सेफगार्ड करती है। तो मेरे ख्याल से हम अब जब भी कन्वेंशन करें या कोई कॉल करें तो उसमें ये जो है, जो हमारा पेनाफ्लेक्स लगे वो 26वीं आइनी अमेंडमेंट की जगह 26वीं आर्मी अमेंडमेंट हो। उससे आइन की जगह जिसने अमेंडमेंट की है उसका नाम हो, आइन तो है ही नहीं है वो। दूसरी चीज़ ये है कि हम सब जितने भी वकला हैं यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत सारी एक तादाद को रोका गया है। फिर हम एक पुरअमन जो है यहाँ पे अपना एहतजाज करने आए थे, एक कन्वेंशन में आए थे। वो लोग एक तरफ कहते हैं कि ये वकला कुछ भी नहीं है, इनकी तादाद कुछ नहीं है, 10 वकला है, 5 वकला है, 8 वकला है। दूसरी तरफ इतनी बड़ी सिक्योरिटीज़ लगाई हुई, आप पीछे देख सकते हैं, पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया है। भाई जब वकला नहीं है साथ, वकला आपको सपोर्ट कर रहे हैं 26वीं तरमीम में, तो आप फिर क्यों ये इतनी बड़ी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर रहे हो? आपको तो खुश होना चाहिए कि 2-4 लोग यहाँ घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है, उनको पता है, उनको खौफ है, उनको मालूम है कि वकला की एक बड़ी तादाद जो उनसी है वो इस अमेंडमेंट की फेवर में नहीं है। और वो ये सब जानते हैं कि बेसिकली ये एक काला कानून है और इस काले कानून के तहत पाकिस्तान की जो अवाम है, जो 25 करोड़ जो अवाम है, उसको ग़ुलाम बना दिया गया है। इसमें कोई भी बंदा सर उठा के नहीं जी सकता है। इसमें हर बंदा जो है उसको ग़ुलामी की तरफ जाना पड़ेगा। हमारे और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। देखिए मीडिया का भी एक टीका जो उन्होंने पास किया तरमीमी बिल, अब वो बिल क्या है, उसका मकसद क्या है? एक ब्लैकमेलिंग है, एक ताकि कोई भी जब भी जिसको
मीडिया के जिस जर्नलिस्ट के खिलाफ उन्होंने एक्शन लेना होगा किसी भी वक्त उसको पकड़ लेंगे, प्रोसिक्यूशन उनकी होगी, पुलिस उनकी होगी, जो दिल चाहेगा वो उसमें करेंगे। तो इस सारी पोजीशन को देखते हुए हम टीका के खिलाफ भी हम जो उनसे जोर मजम्मत करते हैं। फिर उसके अलावा हमारा वहाँ पे सिंध में 6 कैनाल्स का इशू है। दरिया सिंध में शेखों को खुश करने के लिए 6 कैनाल्स बनाए जा रहे हैं। भाई आप क्यों बना रहे हो? वहाँ पहले ही पानी की कमी है, आप बराए मेहरबानी इस चीज़ को बंद करें, शेखों को खुश करना बंद करें। आपने 26वीं आईनी तरमीम को लेकर वकला की राय जानी, जिसमें उनका कहना था कि ये अदलिया को कमज़ोर करने की एक साजिश है। 66 न्यूज़ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, वस्सलाम।